Hello friends and a very good morning to all of you. I, Anchal, welcome you all on Adda247 and today's the topic is for today is phrase replacement. So as you all know, this is an exercise that comes in your examination and this exercise has something to do with grammar. Okay, first of all, यहाँ पर आपको ग्रामर के ऊपर फोकस करना है. अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग. द मेन टॉपिक्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर आर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, tenses and prepositions. These are 5 important topics, and moreover in verb you'll have to focus on subject verb agreement and the usage of infinitive, gerund and participle. Apart from that, you have one more thing, that is preposition, and you have to focus on fixed prepositions while learning prepositions. And the third thing, when you say tenses, you have to read conditional tenses. Okay, what happens when you join two different tenses? When can you join two different tenses? When cannot you join two different tenses? ठीक है, कब आप join कर सकते हो, कब आप join नहीं कर सकते हो. तो these are certain conditions that are there. Now talking about phrase replacement, this can come in your examination in different patterns. Like आपको एक स्टेटमेंट मिल सकता है, you'll have one statement with one part underlined या फिर bold letters में दिया हुआ है. ठीक है, देखो ये चीज़ तो होगी हर क्वेश्चन में. ठीक, maybe one part is underlined or it is given in bold. So for this part you will be given with 3 improvements. आपके पास 3 improvements होंगे इस part से related. Maybe 1 can fit, maybe 2 fits, maybe all the 3 fits, maybe only 2 fit, maybe none of them fits. Right? तो अगर कोई भी fit नहीं होता है या कोई भी fit होता है, then again you will be having options like only 1, only 2, only 1 and 3. So these will be your options. ठीक है, similarly you will get 5 options out of this. ठीक, this is one pattern of asking phrase replacement. Now you have another pattern. एक और pattern होता है आपके पास क्या? Here not one part of the sentence but the whole sentence has an error. ठीक है, अब इस सेंटेंस को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट पार्ट की इंप्रूवमेंट इज गिवन इन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की इंप्रूवमेंट इज गिवन इन सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट की इंप्रूवमेंट इज गिवन इन थर्ड पार्ट. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच part will be replaced, and again you'll have options like only 1, only 2, only 3, only 4 and so on. ठीक है, या यस, तो हम कनेक्टर्स भी सॉल्व करेंगे. अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया व्हाट ऑल यू हैव टू डू. यू विल हैव टू फ्रेज रिप्लेसमेंट की अभी तक की 2 एक्सरसाइजेस पूछी गई हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू. और मे बी स्ट्रेट अवे जैसा एक क्वेश्चन आता है वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का. सो प्लीज डू नॉट मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट टुगेदर. ठीक है, ओके चलो, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ. लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन एंड हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन.
So here it is, as China moves beyond manufacturing and becomes a leader in innovation, they have been created new opportunities. Now I'll tell you one thing, whenever you have a question that will be underlined. I am not giving you options. Why? Because you have to identify the correct sentence over here without giving the answer, so that it becomes a little more difficult for you here, but a little more easier for you when you go to attempt the examination. ठीक है? Okay. चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा. Okay. सेंटेंस कनेक्टर्स नहीं होते, करा देंगे बिल्कुल. नन ऑफ दीज क्लियरिफाई कर दे. नन ऑफ दीज का मतलब कभी भी ये नहीं होता है. आई टेल यू समथिंग गाइज, यू हैव दिस ऑप्शंस एंड इसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3. ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट एंड देन यू हैव नन ऑफ दीज. ठीक है, देखो आपके पास ये जो 3 ऑप्शंस आते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है. ऑल आर करेक्ट का मतलब होता है ऑल ऑफ दीज 3 आर करेक्ट. ठीक है, व्हेन आई से ऑल आर इनकरेक्ट, अगेन यू रेफर टू दीज. लेकिन जब हम नन ऑफ दीज बोलते हैं तो नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं है. ठीक है, नन ऑफ दीज का मतलब होता है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस नथिंग इज करेक्ट. अब आपके पास कोई और ऑप्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल मे बी आपके पास आंसर है 2 and 3. नाउ यू सी कोई भी ऑप्शन में 2 and 3 नहीं गिवन है, राइट, बट दिस इज द करेक्ट आंसर. देन यू विल से नन ऑफ दीज इज योर आंसर. ठीक है, चलो बताओ क्या होगा. ओके, वेरी गुड, यू हैव ऑलरेडी स्टार्ट गिविंग मी द आंसर्स. आपने ऑलरेडी आंसर देना स्टार्ट कर दिया है. सो लेट्स सी. हाँ, इट हैज क्रिएटेड. देखो, as China moves beyond manufacturing and becomes a leader in innovation, they have been. now सबसे पहले we are referring to China, right? हम सबसे पहली बात करें किसकी? चाइना की बात करें तो obvious सी बात है, we cannot use they for it, this is for sure. तो they का use हम नहीं करेंगे because we are not talking about the population, we are not talking about the citizens living inside China. We are talking about China as a country. That means we have to use it here. हमें यहाँ पर इट का यूज करना पड़ेगा. As China moves beyond manufacturing and becomes a leader in innovation, it have नहीं लग सकता. Now you have to write what? It has का यूज करेंगे. It has been created. बताओ, it has been created new opportunities. No. बताओ क्या होगा? It has been creating. Has been creating. Do you have anything mentioned as a time clause? देखो, जब भी आप लगाते हो ना has been या have been ing form, जब भी आप ये कंडीशन यूज करते हो, this is also called verbs ing form, जब भी आप ये कंडीशन यूज करते हो, when do you use it? कब यूज करते हैं? Any task that started in the past and it is still continued. कोई भी ऐसा टास्क जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो उसने तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है, अब करी है ना. Now when this country has become a leader, तब उसने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है. पास्ट से क्रिएट करके अभी तक नहीं चला रहा है. सो दिस कंडीशन इज ऑल टुगेदर रॉन्ग. अभी करी है, समथिंग विच इज हैपेंड इन द नियर पास्ट. ठीक है, समथिंग, आई एम गिविंग यू द कंडीशन, यू टेल मी व्हाट शुड बी प्लेस्ड. समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट, जो काम अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है, कुछ ही टाइम पहले खत्म हुआ है. विच टेंस डू यू यूज फॉर इट? yes, very good. Which tense you use for it? This condition follows present perfect tense, right? ये present perfect को follow करता है. That means आप has और have का तो use कर सकते हो. You can use has or have, but with this you'll have to use verbs third form. That means हम यहाँ पर been का usage जो है वो हटा देंगे. ठीक है, been हटा देंगे और it के साथ लगेगा has obviously. ठीक है, अभी देखो, as China moves beyond manufacturing and becomes a leader in innovation, it has created new opportunities. Got it? Clear? Yes. It has. हाँ, तो देखो थोड़ा सा गलत हो गया, नेवर माइंड, गलत होता है, गलती यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं होनी चाहिए. हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या टाइम क्लॉज गिवन है, विच टाइम क्लॉज इज मेंशन इन द सेंटेंस, एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज यूज्ड. देखो गाइज, आप लोग हमेशा बोलते हो हम टेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते. मैंने भी तो टेंस आइडेंटिफाई किया है ना, जब हमने देखा हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने की बात करें, दिस कंडीशन फॉलोज वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, बट
Are we mentioning something that happened in the past and still continued? No, we are not, right? So in that case, we have to follow what? Something that happened in the near past. So that follows present perfect, and therefore you have to use has or have with verb's third form. That means has created is the correct order here. ठीक है? Okay? चलिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Treasury is sought candidates with at least 10 to 15 year experience in government debt management and or debt capital markets. बताइए क्या होगा यहाँ पर? ओके, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है कैसे भाई? क्यों भाई? चलो देखो, here's the next question for you. Quickly understand what answer it is, what correct sentence will be. Okay. Okay, Pooja, that's correct. Okay, no, that's a correct form, but you'll have to use something else. Pillu ने correct answer दिया है मुझे. Okay. मैं DPS बॉन्ड स्कूल टाइप नहीं गई थी, मैं सरकारी स्कूल भी नहीं गई थी, बट हाँ आई वेंट टू अ स्कूल दैट्स क्वाइट रिनाउंड एंड इट हैज़ कंप्लीटेड लाइक 154 years नाउ. अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बात थी जब हम जिस स्कूल में हम गए थे. ओके, सो नाउ माइंड गाइस, मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ है just because I had a conversation in with this language. So if you start conversing with yourself, अगर किसी कोई और नहीं मिल रहा है भाई, शीशे के सामने बैठ जाओ, कमरा बंद कर लो, अपने आप से बातें करो. थोड़े दिन तक लोग समझेंगे कि हाँ ये पागल है, अपने आप से बात करता है या अपने आप से बात करती है. बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू स्पीक, तो आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रेजरी इज सॉट कैंडिडेट्स. नाउ वी हैव द व्हाट यू कॉल नाउन हियर, राइट? हमारे पास नाउन यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक, हमारे पास नाउन इज ऑलरेडी गिवन, राइट? अब नाउन ही तो कोई काम कर रहा है, समथिंग इज बीइंग डन बाय नाउन, राइट? और अब कंडीशन हम आपसे पूछ रहे हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाते हो? व्हेन द डूअर इज नॉट मेंशन्ड. जब डूअर नहीं मेंशन होता है तब यूज करते हैं, राइट? यस, जब डूअर मेंशन नहीं होता है तब यूज करते हैं. यस, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर क्या होगा? ओके, यस, तो यहाँ पैसिव वॉइस थोड़ी है, ये फॉलो होता है पैसिव वॉइस में व्हेन द डूअर इज नॉट मेंशन. बट हियर वी हैव द डूअर, यहाँ पर हमारे पास डूअर है. ट्रेजरी कैंडिडेट्स को ढूंढ रही है, राइट? तो यहाँ पर पैसिव वॉइस की कंडीशन अनफॉलो होती है. अब बताओ नॉर्मली इसके साथ क्या लगता है? अगर पैसिव वॉइस नहीं हुई तो एक्टिव वॉइस के में क्या लगता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है. सो सॉट नहीं लगाएंगे. वी सॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है सीक और सीक का फोर्थ फॉर्म होता है सीकिंग. Treasury is seeking candidates with at least 10 to 15 year experience. पहली बात, we don't have this word old written here. हमारे पास जब ये शब्द old लिखा रहता है ना, then you use here, but we don't have this word old written. So यहाँ पर हम years लगाएंगे, पहली कंडीशन. ठीक है, years experience. अच्छा, 10 से 50 साल का experience we have to talk about, right? 10 से 50 साल का experience. का, की, के. When you have to show these three words, का, की, के, then what do you use? बताओ, जब आपको का, की, के लगाना होता है, what do you use with a noun? इन इसका जब possession noun के साथ दिखाना होता है, तो noun के साथ क्या लगाते हो बताओ? Yours is absolutely correct. Then you have to tell me one more thing. एक और गलती है इसमें, and what's that error? Okay. और खुद से बात करते हो और खुद से कह देते हो जाबे तेरे से नहीं हो पाएगा. सो गाइज, दिस इज डीमोरलाइजिंग योर सेल्फ. इफ यू डू दैट,
यू आर डूइंग नो हार्म टू द अदर पीपल, यू आर डूइंग हार्म टू योर सेल्फ, है ना। अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सपोज करो आई एम टॉकिंग टू अ मिरर, मैं मिरर से बात कर रही हूँ, तो अगर हम बोले यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या कौन कोई और सुन रहा है या मिरर तुमको जज करने वाला है? नहीं जज करने वाला ना। लेकिन तुम अगर ये चीज़ बोल दोगे तो तुम खुद ही अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ओके चलो, आप सब कह रहे हैं काकी के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, बट ऑफ विद नॉन लिविंग थिंग, राइट, ऑफ विद नॉन लिविंग थिंग। अगर हमें ईयर्स के साथ लगाना है तो क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यूज करना पड़ेगा। और अच्छा बताओ अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, एस के बाद या एस के पहले? वेयर टू यूज इट, एस के बाद या फिर एस के पहले? हाउ विल यू राइट इट? 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस, ओके ओके चलो बताओ। सो एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर और एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, राइट। अगर आप अपने आप से बात करते हो ना, पता है आपका ये क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है आपका। स्ट्रेंथ एज इन वो वाला स्ट्रेंथ नहीं कि आपको बॉडी बिल्डिंग करने लग जाओगे। स्ट्रेंथ मीन्स द थिंग दैट यू हैव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपके अंदर जो ताकत होती है आपको आगे बढ़ाने के लिए, दैट विल इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। इन दैट केस यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। बताओ, ईयर्स ऑफ, ऑफ नहीं लगाएंगे, ओके, यस यस, ओके यस, कहाँ लगाओगे? बाद में, एब्सोल्युटली करेक्ट, हम इसके बाद यूज करेंगे और यहाँ पर लगेगा अपॉस्ट्रोफी। दैट मीन्स स्टेटमेंट विल बी ट्रेजरी इज सीकिंग कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 10 to 15 years, और years में भी apostrophe experience in government debt management and or debt capital markets, okay? Okay. भाई तुम्हारे बहुत सारे यूजेस हैं, मैं क्या बताऊँ तुमको। मिरर्स का सिर्फ तुम्हारी शक्ल दिखाना काम नहीं होता, तो अब बाल सेट करना काम नहीं होता है मिरर का। मिरर के और भी काम होते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यू कैन डेवलप योर सेल्फ इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। हाँ, कुछ सीखना है तो बच्चे बन जाओ, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट अंकुश। बिकॉज बच्चे का माइंड, अ चाइल्ड्स माइंड इज समथिंग दैट कैन बी मोल्डेड इन एनी डायरेक्शन, राइट। कोई भी डायरेक्शन में उसको मोल्ड किया जा सकता है। सो इफ़ यू वांट तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। हेयर नहीं, दीक्षा आप कह रहे हो हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता, पर इन माई ओपिनियन बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। इफ़ मैं बोलूँ मेरे सर पे 3-4 सफ़ेद बाल हैं, 3-4 सफ़ेद बाल हैं, सो आई से दिस कैन बी काउंटेबल, राइट। एक इधर एक इधर एक इधर, आप काउंट कर सकते हो। तो व्हाट हैपेंस, आई हैव 3 to 4 ग्रे हेयर्स, आप काउंट कर सकते हो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हेयर की जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ करोगे? आई हैव ब्लैक हेयर, ठीक है, जो अनकाउंटेबल होता है, ठीक। ओके चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। The Bright Line Initiative is a non-commercial coalition of leading global organizations will be dedicated to helping executives bridge the expensively and unproductive gap between strategy, design and delivery. A strand of hair is also singular. Strand of hair का मतलब हो गया कोई भी एक strand निकाल लो, ये this is a strand, ठीक है, this is a strand। लेकिन अगर हम बोले आपको बात करना है singular बनाने की, सिंगुलर इज ऑल टुगेदर अनकाउंटेबल हेयर, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे हो 2-3 बाल ज़मीन पे पड़े हुए हैं, 2-3 बाल मेरे कंगे में फंस गए, 2-3 बाल मेरे सफ़ेद है, देन यू कैन काउंट दीज, राइट। जब काउंट कर सकते हैं तो वो हेयर बन जाता है, ठीक है। जिसके सारे बाल सफ़ेद होंगे उसके 1-2 बाल काले होंगे, तो वो बोल देगा कि आई हैव 2-3 ब्लैक हेयर्स, ठीक है, 2-3 ब्लैक हेयर्स। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा। जिसने हेल्पिंग बोला है ना, जिसने हेल्पिंग बोला है, सब के सब गलत हो। एवरीबडी इज रॉन्ग, बिकॉज डेडिकेटेड टू शोज व्हाट। हमने ये आपको जब सैटरडे को आई टुक अ डाउट सेशन, आई टोल्ड यू एनीथिंग दैट शोज कंपल्शन, एनीथिंग दैट शोज समथिंग इज बीइंग मैंडेटरी, कोई भी चीज़ जो होके ही रहेगी, कोई भी ऐसी चीज़ होती है और उसके साथ टू लगा होता है ना, तो दिस फॉलोज वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, नॉट
फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ही फॉलो करता है, ये फर्स्ट फॉर्म को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। द ब्राइट लाइन इनिशिएटिव इज अ नॉन कमर्शियल कोलिशन ऑफ लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विल बी डेडिकेटेड। नाउ टेल मी, हाँ, नाउ टेल मी why to place will be here? will be क्यों लगाएंगे? when you know the sentence is given in what? is form, right? the bright line initiative is a non commercial coalition. आप is की बात कर रहे हो, right? is की बात कर रहे हो, is a non commercial coalition of leading global organization will be dedicated या is dedicating? बताओ क्या होगा? will be dedicated या is dedicating? okay, will be dedicated या is dedicating? tell me what should be correct. okay, चलो, हाँ, will be dedicated, no, that तो लगेगा ही नहीं भाई. okay, is dedicated, no, dedicated भी क्यों लगाओगे? is dedicating लगाओ ना. why? because we have ब्राइट लाइन इनिशिएटिव ये काम कर रहा है, डूअर तो हमारा पता है ना हमको, ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है बताओ. इज डेडिकेटिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लगाएंगे इज डेडिकेटिंग इज द करेक्ट form of verbs that has to be used here. The Bright Line Initiative is a non-commercial coalition of leading global organization is dedicating, yeah, dedicating to help, dedicated to help, okay, is dedicating to help. लेकिन guys, is आप लगा तो सकते हो, बट यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि we don't have a verb here. So instead of this हम क्या लगा सकते हैं बताओ? instead of this हम क्या लगा सकते हैं? अब verb तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन स्ट्रेट अवे नहीं है ना. द ब्राइट लाइन इनिशिएटिव इज अ नॉन कमर्शियल कोलिशन ऑफ लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इज डेडिकेटिंग नहीं होगा. वी हैव टू यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन हियर, राइट. इससे पहले हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे? विच इज डेडिकेटिंग टू हेल्पिंग एग्जीक्यूटिव्स ब्रिज द गैप नहीं होगा, अगेन ब्रिज द गैप नहीं होगा, टू हेल्पिंग executives bridge the gap होगा, bridging भी नहीं होगा, because help is a word that follows verb's first form after it. help के बाद हम verb की first form लगाते हैं, तो यहाँ पर bridge होगा, not bridged, ठीक है. bridge the expensively नहीं होगा, अब expensive gap होगा, because we are talking about gap which is a noun, और noun के लिए दो words use हुए हैं, expensive and unproductive, so both of them should be in adjectives form, ठीक है. हाँ, तो अब यहाँ पर सेंटेंस यूज हुआ, द ब्राइट लाइन इनिशिएटिव इज अ नॉन कमर्शियल कोलिशन ऑफ लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस which is dedicating to helping executives bridge the expensive and unproductive gap between strategy, design and delivery. Okay. कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं दैट क्यों नहीं लगा, बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस इनिशिएटिव एंड नथिंग एल्स, ठीक है. ब्राइट लाइन इनिशिएटिव जो है वो एक नॉन कमर्शियल कोलिशन का है, कोलिशन है लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का. अब वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में भी और भी इनिशिएटिव्स ले चुकी हो, लेकिन सिर्फ इस इनिशिएटिव की हम बात करें कि इसमें क्या हो रहा है, देयरफॉर यू आर यूजिंग व्हिच हियर, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ में क्या दिया है. The analogy, okay, risks making the conflict sound like a narrow technical issue or simply one of that sides made more I'll give you. अभी बताओ क्या एरर है, तब तक मैं आपको लास्ट वर्ड जो उसका है वो बता देती हूँ जल्दी से. Okay, बताइए यहाँ क्या लग रहा है. The analogy risks making the conflict sound like a narrow technical issue or simply one of that sides.
आई सपोज दैट्स मनी. या सो लास्ट वर्ड जो दिया हुआ है दैट्स मनी. ठीक है, लास्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो है मनी. दैट इज मनी. योर सेंटेंस एंड्स विद दिस. अभी बताओ क्या होगा यहाँ पर. ओके, make, very good. The sentence given over here, the analogy risks, the sentence starts with a present tense, right? Present tense से start हो रहा है, तो आगे आने वाला जो sentence होगा वो made में कैसे आ गया? It cannot be there, right? यहाँ पर make लगाना पड़ेगा. make तो लगा दिया, लेकिन ये select, don't you think you're selecting something? आपको नहीं लगता कि आप select कर रहे हो? when you say one of, जब आप बोलते हो one of, तो आप select करते हो ना? one of them, that means उनमें से एक. तो one of that sides नहीं होगा, one of which sides. आप सिलेक्शन कर रहे हैं, राइट? सिलेक्शन कर रहे हैं तो that नहीं लग सकता यहाँ पर. आप क्या लगाओगे? you'll have to write which over here. one of which sides होगा या side होगा? one of which sides होगा या side होगा? one of those नहीं होगा भाई. देखो, the analogy risks making the conflict sound like a narrow technical issue or simply one of which side makes क्या होगा बताओ? which make, okay, that side no. one of which sides, one of which sides होगा, क्या होगा बताओ? yes, absolutely correct, because you're selecting. तो select करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे तभी तो select कर पाएंगे, है ना? if we have a lot of options then only we'll be able to select. so the sides का usage यहाँ पर correct है, but because of this word one of, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा makes को, make को makes करना पड़ेगा, makes more money. so the sentence will be the analogy risks making the conflict sound like a narrow technical issue or simply one of which sides makes more money. ठीक है, ठीक है. make तो एक error हो गया और makes करना पड़ेगा, that's another error. so we have 3 errors in this sentence. okay, plural noun आता है one of the के बाद, लेकिन singular verb आता है. absolutely correct. okay, yeah, चलिए now let's move on to the next question. चलते हैं 5th question की तरफ. let's see वहाँ पर क्या दिया है. The Broadcom ban is likely to be just the first volley of whose the administrate seems of see as a counter attack. बताओ क्या होगा यहाँ पर? क्या गलतियाँ लग रही हैं आपको? The Broadcom ban is likely to be just the first volley of whose the administrate seems of see as a counterattack. ये सेंटेंस तो पढ़ने में इतना वाहियात लग रहा है तो एरर तो होंगी इसमें बहुत सारी. बताओ क्या क्या गलतियाँ आप लोग को लग रही है? What errors do you find in this? बताओ. Which is used for selection, that is used to just point out. ठीक है. मेक्स क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में लगाना है ना, इसलिए. और वन ऑफ का मतलब हो गया सब में से किसी एक की बात आप कर रहे हो. हाँ, नंबर ऑफ साइड से सिलेक्ट करेंगे एक साइड. एब्सोल्युटली करेक्ट दीपाली. अगेन यहाँ पर बताइए क्या गलती लग रही है आपको? The Broadcom ban is likely to be just the first volley of whose the administrate seems of see as a counter-attack. Which लगेगा? Are you sure? Just the first volley of which the administration seems to see. हाँ, बताओ क्या होगा? First volley of which, absolutely correct. आप यहाँ पर whose का use नहीं करेंगे. whose यहाँ पर use किस लिए होता है? whose is used to show possession ऑफ अ लिविंग थिंग. यहाँ पर कोई लिविंग है ही नहीं भाई, तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ विच का यूज करेंगे. विच इज द करेक्ट वर्ड हियर. ऑफ विच. द एडमिनिस्ट्रेट नहीं होगा. एडमिनिस्ट्रेट इज अ वर्ब. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट इज अ वर्ब. स्ट्रेट इज अ वर्ब. सो वी हैव टू यूज व्हाट? हमें यहाँ पर नाउन लगाना था बिकॉज वी हैव द हियर. द हियर, तो यहाँ पर क्या होगा?
एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किया जाएगा. वी हैव टू यूज एडमिनिस्ट्रेशन हियर. द एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स. अच्छा, सीम्स के साथ क्या लगाते हैं? देयर इज अ फिक्स प्रेपोजिशन दैट वी यूज विद सीम्स. सीम के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है जिसको हम सिर्फ उसी के साथ यूज कर सकते हैं. तो व्हाट इज इट? बताओ. यस, ऑफ विच द एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स. आप कह रहे हो मैं सीम्स के साथ ऑफ सीइंग लगा दूं, तो वो भी एक हद तक करेक्ट है, बट देन सीम्स के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है. देयर इज अ फिक्स. दिस सीम्स टू मी होता है या दिस सीम्स ऑफ मी होता है? बताओ. दिस सीम्स टू मी होता है या फिर दिस सीम्स ऑफ मी होता है? बोलो. What is it? Is it this seems to me or this seems of me? Okay. Okay. चलो, यस, सीम्स के साथ हम यूज करते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. सीम्स के साथ यूज होता है टू का. ठीक है. सीम्स टू सी एज अ काउंटर अटैक. नाउ गाइज, इफ आई टेल यू देयर इज एन एरर, जो आपने बताया है उसमें एक गलती है, सो व्हाट वुड यू से? इफ आई से देयर इज वन एरर. ओके, किसी ने मेरे को बता भी दिया है. आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम अभी. अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है? देयर इज वन एरर. जो अभी हमने सब डिस्कस कर लिया ना, इसमें एक एरर बाकी है. व्हाट इज दैट एरर? बताओ. हाँ, दो लोगों ने मुझे बता दिया है वो एरर, बट स्टिल बाकी सभी बताओ जल्दी से. सीम्स टू, ठीक है, सीम्स टू सी एज अ काउंटर अटैक. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. दो लोगों ने मुझे सही आंसर बता दिया है. आई विल डिस्क्लोज द नेम डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमने एरर सॉल्व करी है उसमें क्या गलती है. ठीक है, चलो देखो, अभी हमने आपको बताया. चलिए हम आपको हिंट दे देते हैं. वी हैव दिस वर्ड हुज, वी हैव दिस वर्ड विच, एंड देन वी हैव द वर्ड व्हाट. ठीक है, तीन वर्ड्स है हमारे पास. मेरे को शुभम और अंशुल ने सही आंसर ऑलरेडी दे दिया है. ठीक है, ठीक है. हाँ, देखो क्या होगा. हुज, विच और व्हाट में डिफरेंस क्या है? हुज का यूज यू नो, वी यूज इट टू शो पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए. किसका? ऑफ लिविंग बीइंग. ठीक है. विच का यूज दो तरह से होता है. व्हेन यू सिलेक्ट समथिंग, वन, एंड देन यू शो द पोजेशन ऑल्सो ऑफ नॉन लिविंग विथ दिस. ठीक है. एंड देन यू हैव व्हाट. व्हाट का यूज बहुत कम सेंटेंसेस में होता है, एंड दिस इज द जनरल यूसेज ऑफ इट. क्या यूसेज है? व्हेन द एंटीसीडेंट इज एब्सेंट, मतलब जब आपका एंटीसीडेंट दिया ही ना हो. ठीक. नाउ यू नो एंटीसीडेंट कैन ओनली बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो जब एंटीसीडेंट नहीं गिवन रहता है तब आप ये यूज करते हो, राइट? तब आप ये यूज करते हो. तो यहां पर बताओ क्या होगा. बताओ. Here you have of given over here, right? यहाँ पर आपके पास yes, what लगा डाला तो लाइव जिंगल डाला. That's absolutely correct पूजा. But यहाँ पर of दिया है, and of cannot be treated as an antecedent, right? of को आप antecedent की तरह treat नहीं कर सकते. तो what भी एक relative pronoun है भाई, इसको भूला मत करो. ये भी हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है. तो इसको आप विच की जगह पर यहाँ पर यूज करेंगे व्हाट का, बिकॉज प्रेपोजिशंस कैन नेवर बी ट्रीटेड एज एंटीसीडेंट्स. बाकी जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उन सबके साथ एंटीसीडेंट लगता है, बस व्हाट का एक ऐसा यूसेज है. या ओके, चलो, एंटीसीडेंट इज मिसिंग, सो वी आर यूजिंग दिस. ठीक है. आई एम अ हैप्पी ह्यूमन. सो अगर आप हैप्पी ह्यूमन हो, सो ट्राई टू बी हैप्पी. इफ यू डोंट लाइक द शो, प्लीज लीव. ठीक. अदर्स आर, एटलीस्ट अदर्स आर स्टडिंग. ठीक. चलो, सो आई होप ये क्लियर हो चुका है.
हाँ, ये पहले नहीं सोचा था, इसीलिए मैंने आपको टोका भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आप एक ही फ्लो में जाते हो, है ना। अभी आपको ये टोक दिया है ना, तो नाउ यू दिस विल बी देयर इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा काफ़ी समय तक। क्या कि ये देख चेक करना है कि जहाँ पर भी एंटीसीडेंट, जहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, उससे पहले देख लो भाई एंटीसीडेंट दिया भी है या नहीं दिया है। ठीक है, ठीक, ओके। सो वेरी गुड शुभम एंड वेरी गुड अंशुल। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, किसी ने मुझसे पूछा है डिटेल एग्जाम्पल। ओके, साहिल आप एक रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है Adda247 पर। आप उस वीडियो पे चले जाना और देख लेना, सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के अलग अलग यूजेस मैंने वहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद यू कैन गो फर्दर। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ चुका है पहले ही, थैंक्स अ लॉट। आवर मिशन वाज टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड एनकरेजमेंट, partnership in caring for the environment by inspired, informing and enabling nations and people improve their quality of life without compromising that of future generations. Okay. Okay. 2 के बाद verb की fourth form कब आती है? कुछ तो words होते हैं like you have these prone to, you have accustomed to, you have averse to, you have objected to, you have dedicated to, you have, ये जो वर्ड्स हैं जो भी कंपल्शन शो करेगा, जो भी मैंडेटरी होने की बात बताएगा कि ये होगा ही होगा, उनके साथ आप टू का यूज़ करते हो, टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन, कहाँ पर टू के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, अभी चलो इधर आते हैं। आवर मिशन वॉज टू प्रोवाइड, हमारा मिशन था, पहले तो यही बता दो हमें। मेरा मिशन ये था कि लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, पार्टनरशिप एनकरेज करेंगे इन केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट, फॉर इंस्पायर, इन्फॉर्मिंग एंड एनेबलिंग नेशंस एंड पीपल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। सो वाज इट, क्या मेरा ये मोटिव था, ये मेरा मिशन था या है? इज इट देयर? यस, आवर मिशन इज टू प्रोवाइड, हमारा मिशन है टू प्रोवाइड। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड पैरेललिज्म। ठीक है, कुछ चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म। दैट मीन्स इफ यू यूजिंग 3 words, 2 words एसोसिएटेड टू 1 सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है और इस एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कितने भी वर्ब्स यूज़ कर लो, तो ये सारे वर्ब्स का जो फॉर्म है शुड बी सेम। ठीक है, फॉर्म शुड बी सेम। सो हियर व्हाट आर वी डूइंग, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब हमने बोला मेरा मिशन इज के साथ 2 वर्ब्स लगे हुए हैं ना, टू प्रोवाइड, तो प्रोवाइड क्या करा रहा है? क्या प्रोवाइड करा रहा है बताओ? व्हाट इज इट प्रोवाइडिंग? इट्स प्रोवाइडिंग लीडरशिप, राइट। ये प्रोवाइड करा रहा है लीडरशिप, और फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करा रहा है? एनकरेजमेंट नहीं होगा, वो भी वर्ब ही लगेगा, टू इनकरेज होना चाहिए। टू इनकरेज व्हाट? पार्टनरशिप। तो लीडरशिप और पार्टनरशिप आपके नाउन्स हो गए और ये दोनों आपके वर्ब्स हो गए। ठीक है, ठीक है। So is to provide leadership and to encourage partnership in caring for the environment by inspire. Again हमने ये जो कंडीशन की बात करी है पैरेललिज्म की, तो अगेन इंस्पायर्ड, इन्फॉर्मिंग, एनेबलिंग, ये तीनों वर्ब्स जो दिए हुए हैं, इंस्पायर्ड एक हो गया, फिर इन्फॉर्मिंग दूसरा हो गया, फिर एनेबलिंग तीसरा हो गया। तो यहाँ पर अगर ये दोनों आईएनजी फॉर्म्स में, दिस हैज टू बी इन आईएनजी फॉर्म एज वेल। सो व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करोगे बताओ? यू विल यूज इंस्पायरिंग हियर। ठीक है, आप इंस्पायरिंग का यूज करोगे। ओके, यस, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बना? आवर मिशन वाज टू प्रोवाइड लीडरशिप, आवर मिशन इज टू प्रोवाइड लीडरशिप and to encourage partnership in caring for the environment by inspiring, informing and enabling nations and people improve their quality of life without compromising that of future generations. ठीक है, now let's move on to the next question. Okay, inspiring, absolutely correct. चलो देखो, I would like to reiterate that every dollar of public money is accounted for as it is my duty before God and the nation.
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दी है इसने। बताओ क्या होगा। I would like to reiterate that every dollar of public money is accounted for as it is my duty before God and the nation. ओके तो अकाउंटेड टू नहीं होता है, अकाउंटेड फॉर ही होता है बाबा। अकाउंटेबल टू होता है, आई एम अकाउंटेबल टू दिस। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग समझ गए हो, यहाँ पर नो एरर ही है। आई वुड लाइक टू रीइटरेट, टू के बाद टू रीइटरेट लगेगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, करेक्ट है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, करेक्ट है। दैट एवरी डॉलर, एवरी के बाद सिंगुलर लगता है, करेक्ट। एवरी के बाद सिंगुलर लगता है, डॉलर लगा है, करेक्ट। ऑफ पब्लिक मनी, डॉलर किसका होगा, पब्लिक मनी का है, ऑफ का यूसेज करेक्ट। इज लगा है बिकॉज वी आर यूजिंग एवरी, तो इसके साथ भी ये भी करेक्ट है। अकाउंटेड फॉर लगाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट मीन्स दिस सेंटेंस हैज नो एरर इन इट, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं दी गई है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। Electricity is less user friendly than oil. It was hard to store. It loosened its oomph, were shipped over long distances, and its transmission and distribution require hands-on regulation. Hands-on regulation. बताओ यहाँ क्या गलतियाँ हैं? यहाँ तो गलतियाँ लग रही होंगी ना, ये तो नो एरर नहीं होगा ना। पकड़ लेते हो यार तुम लोग, अब अच्छी बात है, पढ़ रहे हो इसका मतलब। What should we talk to mirror? Talk about yourself. अपने आप के बारे में बात करो, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार अपने आप के बारे में बात करो और करते चले जाओ। Try to talk about your ambitions. Try to discuss yourself, ठीक है। We never do that actually. हम कभी भी अपने आप को डिस्कस नहीं करते किसी के साथ, और ना ही अपने साथ करते हैं। हम कभी अपने आप को डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा एक्चुअली व्हाट फ्लॉज डू वी हैव, हमारे पास, हमारे अंदर क्या गलती है, ठीक है। एंड व्हेन वी डू दैट यू डेफिनेटली इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। गिव मी ओके मेरा जीमेल आईडी है anchal.sharma@adda247.com, ठीक है। चलो देखो क्या होगा यहाँ पर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज लेस यूजर फ्रेंडली देन ऑयल, इट वाज हार्ड टू स्टोर, इट वाज हार्ड टू स्टोर और इट इज, दैट्स अ फैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, राइट, सॉरी दैट्स अ फैक्ट विद ऑयल, राइट, या ये क्या है, फैक्ट है इनके साथ। ये एक फैक्ट मेंशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये एक फैक्ट मेंशन कर रहा है ऑयल के बारे में। सो फैक्ट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, वाज नहीं लगा सकते, सो वी हैव टू यूज व्हाट, इसका यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इज हार्ड टू स्टोर, करेक्ट। इट लूजन नहीं, इट लूजन नहीं ना, अगेन फैक्ट की तो बात कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, अगर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये एक फैक्ट हो गया कि ये स्टोर करने में हार्ड है। दूसरा फैक्ट हो गया कि वो अपना ऊम्फ, दैट मीन्स द अट्रैक्टिवनेस दैट इट हैज, वो खो देता है। सो अगेन लूजन नहीं होगा, क्या होगा, लूजेस का यूज करेंगे, ठीक है। इट लूजेस, लूजेस का यूज करेंगे, ठीक। ओके ओके चलो, तो क्या करेंगे, लूजेस का यूज करेंगे। लूजेस इट्स ऊम्फ, इट इज लगेगा। अब देखो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स, ये जो इट्स है दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इट इज एंड दिस डिफाइंस पोजेशन। तो वो अपना ऊम्फ खो देता है, अपनी अट्रैक्टिवनेस खो देता है। ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजेशन, राइट, आप पोजेशन की बात कर रहे हो, तो ये करेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। इट्स ऊम्फ were shipped over long distance, long distances में जब भेजा जाता है, so we are talking about time, don't you think so? जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, yes, absolutely correct, यहाँ पर where नहीं लगेगा because we are not talking about time, place, we are talking about when, जब उसको ज़्यादा दूर भेजा जाता है। Electricity is less user friendly than oil, it is hard to store, it loses
its oomph when shipped over long distances and its transmission and distribution require hands-on regulation. ठीक है, ठीक है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. oomph का मीनिंग द अट्रैक्टिवनेस. oomph का मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस. यस, seduction एक्चुअली. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. देयर हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स टू डिस्क्रेडिट आई एंड माई लेगेसी एज वाज द केस विद द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट मी इन योर आर्टिकल. बताइए क्या होगा यहाँ पर. यस, मिट्स द पॉइंट ऑफ इट्स. कोई बात नहीं. ये देखो छोटी छोटी एरर्स हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, loses versus losses. Akura Sena, let me tell you, when I say losses, LOSES, that's a noun. ठीक है, that's a noun. And when I say LOSSES, that's a verb. ठीक, loses is a verb, losses is a noun. ठीक, have been, okay. There have been concentrated efforts, absolutely correct. जब भी हम ये condition use करते हैं ना, there dash been, सो यहाँ पर जो भी वर्ब लगना होता है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग होता है. वट एवर नाउन वी हैव यूज्ड हियर. सो यहाँ पर नाउन क्या लगा हुआ है, एफर्ट्स लगा हुआ है. राइट, एफर्ट्स लगा हुआ है. प्लूरल है तो यहाँ पर भी हम हैव लगाएंगे. सो ये हो गया हैव. देयर हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स टू डिस्क्रेडिट आई एंड माई लेगेसी, या मेरा और मैं और मेरी लेगेसी. यस, टू डिस्क्रेडिट मी एंड माई लेगेसी इज करेक्ट. सो यहाँ पर मी का यूज होगा, आई का यूज नहीं होगा. आई नहीं लगेगा. एज वॉज द केस विद द एलिगेशंस. ठीक है, या बीन नहीं लगेगा. देयर हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स. करेक्ट है, करेक्ट है. बीन क्यों नहीं लगेगा. हैज के बाद या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी तरह से तो लगी है. बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लगी है. ठीक है, यस. As was the case with the allegations made against me in your article. Yes, clear? अब हम यहाँ पर yes, यहाँ हाँ ये clear हो गया है. Now let's move on to the next question and the last question of this session. None of this though will change the fact which over the past generation China real has become a technological power comparable in many of its capabilities to Europe, Japan and America. बताओ यहाँ पर क्या लगेगा. What do you think shall be placed here? What errors do you think we have here? Okay, concerted है, concentrated नहीं है. Oh, sorry, concerted है, sorry. My bad. मैंने गलत पढ़ दिया. ठीक है, ओके चलो देखो. नन ऑफ दिस दो विल चेंज तो नहीं होगा. पहली बात, नन ऑफ दिस विल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो बिकॉज दिस इज अ मॉडल वर्ब एंड एवरी मॉडल वर्ब्स हैज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इट, है ना. हर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो यहाँ पर पहली एरर हो जाएगी क्या कि हम चेंज का यूज करेंगे, चेंज्ड का नहीं. ठीक है, नन ऑफ दिस दो विल चेंज द फैक्ट विच ओवर द पास्ट. दैट ओवर द पास्ट, विच ओवर द पास्ट. विच नहीं लगेगा, सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है. दैट फैक्ट की बात करें, वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट दैट फैक्ट दैट ओवर द पास्ट जनरेशन रियल चाइना नहीं, चाइना रियल नहीं. ओवर द पास्ट जनरेशन होगा, पास्ट जनरेशंस होगा. बताओ, पास्ट जनरेशन होगा, जनरेशंस होगा. ओवर द पास्ट ईयर्स, पास्ट फ्यू ईयर्स होता है, पास्ट ईयर होता है. बताओ, हाँ. ओवर द पास्ट जनरेशंस होगा. ओवर द पास्ट जनरेशंस का यूज करेंगे, कई जनरेशंस की बात कर रहे हैं. ओवर द पास्ट जनरेशंस चाइना रियली हैज बिकम, रियल नहीं होगा, चाइना रियली हैज बिकम,
चाइना बन चुका है. Really has become का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम. Again, really is the word. So we have 4 errors in this sentence. None of this though will change the fact that over the past generations, China really has become a technological power comparable in many of its capabilities to Europe, Japan and America. That's it guys for today. Thanks a lot for joining me here. Bye-bye. Take care of yourselves. Keep watching us. Keep loving us because we love you.